Okay, so good morning, one and all who are present here. Today we have a speaker, Dr. Bhushan Ratnakar Mahajan sir. He is a very renowned personality in the university, having more than 28 years of teaching experience and in the experience of innovation. Okay, sir has in-depth administrative experience gained being as a head of the department in the Education Institute since 2001. A self-driven, result-oriented person with the reliability and ability to connect all the levels and organizations. Continuous self-development and continuous learning has added to the skills, knowledge, and the asset of the Institute of the SIRS. Okay, Sir has completed his polytechnic in 1988. After that, he's completing a graduation, Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, and completed his MTech from BNIT in 1992 also. Sir has pursued doctorate from RTM Nagpur University, and today Sir has taken the session on the topic establishment of innovation and ecosystem in a higher education institute. So without wasting of time, I welcome Dr. Mahajan sir to proceed the session. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev Kumar Hirankede, sir. Thank you, And, sir. and thank you, dear all participant. All most respected and learned participants. uh, First of all, I am very much thankful to SB Jain College of Engineering and Management, uh, Principal sir, Director sir, and all the eminent personality of SB Jain for giving me opportunity. May I audible, sir? Yes, sir. Yes, yes. Yeah. For giving me opportunity to deliver my talk on this particular topic. Uh, because you all are aware about the innovation and ecosystems. Let me share my presentation. Sir, presentation दिसतंय का? हाँ सर ते अपलोड होऊन राहिलं सर. Yes, yes, it is visible, sir. Okay. Yes. Dear all, a topic which I have chosen for today's deliberation is establishment of innovation and ecosystem in higher education institute. It is just a simple methodology how we have to execute our process and our methodology, because we all are the technocrats and we are doing different projects. So whatever the innovative ideas and innovations which you are implementing, so how it can be a patentable, how it can be executable, so that there should be, we can start the entrepreneurship, we can make the entrepreneur culture among our students. So that is the thought process, and we have to integrate that innovative idea in terms of ecosystems with incubation centers. So what are the different stages so that we can cope up with that particular need? That is the thought process which I want to put in front of you. Sir, second slide. दिख रहा है ना? Yes, sir, it is visible. Yeah. Okay. With all due respect, I would like to narrate my views with following heads. Importance of innovation enterprise and MSME. Role of MSME in India economy and global innovation index ranking of the India. And the third part, which is very important for us to discuss, what can higher education institute do? And the last is summary. इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. आता इथे यहाँ पे मैं हर स्लाइड को ना पढ़ते हुए मेरे को ये बताने का है कि वॉट एवर दी thought process or whatever the innovative concept which we are being as a teacher we are giving to our students, agree, and we are making projects and we are making patent and all that, but we have to give our thought process in such a way that whatever the
concept or the idea which students are developing, that idea should be innovative so that they can move ahead and they can start their career as an entrepreneur. So turning an idea into the solution that adds values from the customer perspective. So being as a teacher, we have to take this particular initiative while choosing our project, while doing our activity. Uh, we have to inculcate that particular thought process among our students, to give them the uh, uh, thoughts of the entrepreneurs. So what exactly because who is entrepreneur? The person who is not ordinary, he is extraordinary. No doubt, he is not expert in that particular product, but he has capacity to hire the people. He has capacity to take out the work from the people. He has capacity to manage the people. He has capacity to make the innovation in that particular process. So, if such type of characteristics are there in their students, and that characteristics we as a teacher we have to inculcate among our students, because they are the beginners. They are just going to start uh, entering into the arena of engineering, and with us they are passing their 4 years. So during their journey, if we will inculcate this particular idea, then we can see the dream of entrepreneurship at our institutes. So this is what importance of the entrepreneurship and innovation. It, Joseph Stiglitz, one of the greatest economists of all the times, put innovation at the heart of economic theory and capitalization. The theory of creative destructions. Ultimately, यहाँ पे यही बोलने का innovation मतलब innovation is nothing but the जुगाड़. Because we are not getting the solution to the problem, then whatever for finding out the solution, what way we are doing the things, that has been called as the innovation. And if we are developing that innovation for the society, then that can be called as the entrepreneurship. Importance of the MSME and startups in Europe. Young firm with innovative technology have highest. यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको एक रेशियो बताने का है सर, और उसके बाद में फिर हम लोगों को हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाने का उसके ऊपर में चर्चा करेंगे. In European Union, 60% of the jobs are accounted by SME. मतलब these are the small micro entrepreneurs. In Germany, 80% of the jobs comes from the small micro enterprises. In Korea also 90% jobs are generated. उनकी इकोनॉमी हमारे से क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे ये जो सोसाइटी को जो जॉब्स मिल रही है, जो स्मॉल मीडियम या माइक्रो ये जो अभी प्रेजेंट जो स्टेज है, यहाँ पे 65 to 70 करोड़ पीपल ये पर्टिकुलर कैटेगरी में लाए हो रहे. ओनली 0.09 कंपनी वर्किंग एज पर्सन. तो आप देखो कि इतने लोगों को कहाँ जॉब मिल पाएंगे. 1000 लोगों के पीछे एक कंपनी है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसएमई बहुत ही जिस प्रकार से डेवलप होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है. But MSCB are, क्योंकि we all are the dependent, and if we want to become independent, then we have to do our own startups and own our because when there is a startup, we should be in a position to give the jobs to the society, and students or these peoples get employment. अगर employment बढ़ेगा तो ही हमारा economy आगे बढ़ेगा.
So MSME plays very important role. These are the vibrant and the dynamic sectors from the last 5 decades, significant contribution for the economic and the social development. MSME are the complementary to the large industries as ancillary units. MSME winding their domain across the sectors of the economy, producing diverse range of the products and services to meet the domestic as well as the global. In any domain, if we start any work, that will become under small micro enterprises. And if that particular setup has been started, there should be employment generation. Okay, and our country is lagging behind in this particular arena. रोल ऑफ दी एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा जो चार्ट, सर स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस सर, स्क्रीन विजिबल है। हाँ, रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। प्रेजेंटेशन थोड़ा मेरा मतलब 1 ईयर अर्ली का है, तो भी मैं जो यहाँ पे फिगर मोर और लेस अभी भी वही फिगर मैच हो रही है। 2014-15 में देखिए हमारा जो जीडीपी था, उसके बाद में 2018-19 का जीडीपी देखिए, मतलब यहाँ पे जो ये है शेयर्स ऑफ द, यहाँ पे जो भी जीडीपी इंडिया का जो जीडीपी है उसमें जो शेयर है सबसे ज्यादा एमएसएमई का ही है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई इंडस्ट्रीज in the country, the total manufacturing gross value of the output at the current price has also remained constant at around 33%. That is 1/3 during the period from 2014 to 15 to 2018-19. तो यहाँ पे यही बताने का है कि सर जो भी हमारा योगदान है ये एमएसएमई के माध्यम से ही है, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के माध्यम से, मगर वही हमारे यहाँ पे कम है। और हम लोग जीडीपी में हमारा MSME plays important role, and in this particular sectors we are lagging behind. Overview of the India's ranking in Global Innovation Index rankings. This is the report. You can see the highest possible ranking in each pillar is 1. In terms of knowledge and technology, our country is lagging 27 numbers. Market sophistication, our country, because there are 131 economical countries. Among that 131 economical countries, we are lagging. We are at the number 48. हमारा ओवरऑल जो है नंबर वो 48 आ रहा। और यहाँ पे जो अलग अलग पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, यहाँ पे हम लोग 27 नंबर पे है। मार्केट 131 में से 27 नंबर पे है। मार्केट सोफिस्टिकेशन में हम लोग 31 पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा ओवरऑल 48 है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन में वी आर 55। ह्यूमन कैपिटल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, 60 इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन जहां से आ रहा है वहां पे हमारा नंबर 61 में। क्रिएटिव आउटपुट्स 64 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वी आर 75 अमॉन्ग 131 कंट्रीज। सो दिस इज अवर पोजीशन। और यहाँ पे नॉलेज और टेक्नोलॉजी में हमारा नंबर देखो 131 में 27 है। इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स है वो सब बाहर जा रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि उतनी सुविधाएं हमारे पास में नहीं है। Now we are coming to our topic. Institution matters. Among the top quality matters among the high income countries, major divider can be found out in the quality of innovations. It does not mean कि हमारे यहाँ पे innovation नहीं है, हमारे यहाँ ही innovation है, क्योंकि हमारे students, हमारे यहाँ के innovators, they are not staying over here and they are going outside. This is the area in which USA and the United Kingdoms are largely, as a result of their world-class universities, stay ahead of the pack. उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके इंस्टीट्यूशंस, दे आर मच 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 अहेड देन आवर कंट्री। Innovation, quality, but innovation is not only about the volume. Quality counts too. In terms of innovation, quality as measured by the university performance, the reach of the scholarly articles, and the international dimension of the patent application. The USA hold the top place with the high income group, followed by the UK, Japan, Germany, and Switzerland. And I am in this particular forum, I am not blaming ourselves, but we are doing the patents, we are doing the things, but we are doing it for getting our degree, for getting our promotion and all that. But we never think
कि whatever the product which we have developed or which we have done some sort of innovation, that should be come into the commercialized way. So, and the other countries, you can see the scenario over here. USA is number one, then UK, Japan, Germany and Switzerland, because वहाँ पे पेटेंट ज्यादा है, वहाँ पे quality of the work is also refined. University performance is also very much higher. In all the parameters, they are much ahead than us. But intelligent manpower, they are taking from us, because in the previous slides you have seen knowledge and technology, our number is 27. What colleges can do? Colleges reflect the cultural mindset of the poor risk taking in the society. Most of the colleges different to entrepreneurship development and innovation. Many colleges conduct, अभी ये कल्चर चालू हो गया, अभी तक तो था ही नहीं, innovation, entrepreneurship development. Many colleges conduct EAC once in a while few colleges have entrepreneurship development cell. Entrepreneurship development and innovation activity are fund and donor driven and not a vision driven. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोलना है कि वो if this thing will come into the existence, then we can move ahead. And this is very interesting slide. ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है, बस वो इसके पीछे लगे कि मेरे यहाँ का प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरे यहाँ पे कितने बच्चों को ऑफर, क्योंकि अकॉर्डिंगली देयर विल बी दी, आगे की बातें मैं यहाँ पे ये फोरम में मुझे बोलना उचित नहीं, बट नो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं देखने को मिलता है आपको कि मेरे यहाँ पे इतने इनोवेटर्स हुए करके. एवरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर फोटोज. सर दीज आर द प्लेसमेंट, दीज आर द कंपनीज हु हैव विजिटेड, और इतना हमारा इस साल का प्लेसमेंट, उस साल का प्लेसमेंट. मगर इस हमारे यहाँ के इतने एंटरप्रेन्योर्स बने, नॉट अ सिंगल कॉलेज. आई डोंट रिमेंबर, इफ यू नो, आई डोंट नो, बट इन माय नॉलेज आई हैव नॉट सीन इन आवर कंट्री. टोटल GEM इंडिया सर्वे फॉर 2030. तो यहाँ पे मतलब ये जो ग्राफ, आप सर ये ग्राफ दिख रहा है? हेलो सर जी, विजिबल है सर ये. यस. मीडिया अटेंशन, हाई स्टेटस एंड करियर चॉइस ऑन वाई एक्सिस, दीज आर द 3 पैरामीटर्स. यहाँ पे अलग अलग चीजें दी हुई है. करियर चॉइस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 56 एंड 82, तो 82% of the entrepreneurs consider entrepreneurship as a desirable career choice, while 56 of the non-entrepreneurs consider entrepreneurship as a desirable career choice. इसमें से आप ये पता करो कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, 82% लोग जो बिजनेस मतलब जो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिजनेस वाले ने बिजनेस ही करना चाहिए, और जो नौकरी वाले हैं उसमें से 50 या 60%, 56% लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार तूने बिजनेस करना चाहिए. ये हमारे यहाँ की मानसिकता है, ये मानसिकता को हमें बदलने का है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ करियर चॉइस, इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हाई स्टेटस, 84% जो है वो एंटरप्रेन्योर्स, मतलब सोसाइटी में स्टेटस किसका हाई है? आपका मेरा हाई है क्या? एक IAS ऑफिसर का हाई है क्या? टाटा का हाई है, अंबानी का हाई है, बिकॉज दे आर दी टेक्नोक्रेट्स, they are the employment generations. We are not recognize the collector of the Amravati or the collector of the Nagpur. कोई आपको या आपको हमको पेपर में पता चलता कि भाई नागपुर का कलेक्टर कौन है, मगर आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है कि who is Mr. Tata, who is Mr. Adani, who is Mr. Ambani. Then मीडिया अटेंशन भी किसका ज्यादा करते देखो, 85%, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका, बिजनेसमैन जो लोग जॉब वाले हैं 55%. तो यहाँ पे मुझे यही बोलना है कि वह हमारे कंट्री में भी रुझान उन्हीं लोगों की तरफ ज्यादा है. लोगों का देखने का जो नजरिया है ये एंटरप्रेन्योर की तरफ देखने का एक अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग हमारे अंदर में भी बदलाव लाए. बीइंग एज अ कॉलेज हमको इस प्रकार का पिक्चर शो करना है. एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च, लाइफ साइंस में हमने कितने एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च किए, मैन्युफैक्चरिंग में कितने लॉन्च किए, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में हमने कितने लॉन्च किए. If every institute will think in that particular directions along with their alumni and their pass out student, then that dream is not far away from us, because we are seeing the dream like this. कितने बच्चे हमारे प्लेस हुए ताकि हमारा अगले साल का
हमारा एसेंचर में 10 गए, यहाँ पे वो गए, वहां पे वो गए. सो वी हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर साइकोलॉजी एंड वी हैव टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर फैशन. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन का विजन एंड मिशन क्या होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ एन aspiral entrepreneurship culture, opportunities driven entrepreneurship as opposed to the necessity driven, enhancement of the support ecosystem for the entrepreneurs, rapid and inclusive growth of MSME, startup, entrepreneurship and innovation. हे सगळं वाचतोय मी, पण जस्ट आई वांट टू टेल यू कि टू बिकम, किसी को एंटरप्रेन्योर बनाना इतना आसान भी नहीं है, मगर हम लोग बना सकते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट हमारे पास में 4 साल रहते हैं. 4 साल में हम लोग उसका माइंडसेट कैसा चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर में हमको वर्क करना है, ताकि वो अपना करिकुलम कंप्लीट करने के बाद में एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी ही कैन थिंक, ही कैन प्लान एंड ही कैन एग्जीक्यूट हिज मॉडल. इंस्टीट्यूट का क्या विजन होना चाहिए? क्योंकि मेरा जो टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेशन एंड इकोसिस्टम इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर ये हम लोग कर पाएंगे तो ही हमने जो सपना वहां पे हमने देखा है कि मेरा कॉलेज में इतना लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए, इतना लोग यहाँ पे जा रहे, इतना लोग वहां पे, दैट ड्रीम विल बी फुलफिल. तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन का क्या विजन होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे आपके सामने बात करना चाहूंगा. एस्पायरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बिल्ट अप इन द कॉलेज मॅनेजमेंट, एल्युमिनी, स्टुडंट अँड फॅकल्टी. म्हणजे हे फक्त विद्यार्थ्यांमध्येच असावं असं नाही, इट शुड बी इनबिल्ट. मैनेजमेंट, एल्युमिनी, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, ये सबका अगर कॉम्बिनेशन रहा, क्योंकि हमारे एल्यूमिनी है जिनका खुद का बिजनेस है, उनके साथ में हमको चर्चा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे उनके मोटिवेशन लेना पड़ेगा. जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एग्जिस्टिंग, उनको उनके साथ में जोड़ना पड़ेगा. जो हमारे फैकल्टीज है जो इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, पेटेंट कर रहे हैं, अपना PhD कर रहे हैं, अपना प्रमोशन के लिए ये अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से पेपर्स लिख रहे हैं, उन्होंने भी अपना जो काम कर रहे हैं उसमें कैसा इनोवेटिव कंसेप्ट मेरा रहना चाहिए ताकि इट शुड बी स्केलेबल इन द मार्केट, सो दैट दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस कैन बी स्टार्ट एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये कल्चर फैकल्टी में, स्टूडेंट्स में और मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. हमारी सबकी इच्छा और मैनेजमेंट का अगर उसमें रोल ही नहीं, क्योंकि विदाउट सीड मनी, विदाउट फंडिंग नो वन कैन स्टार्ट. सो मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज वेरी वाइटल रोल कि भैया हमारे यहाँ का बंदा काम कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ सीड मनी, अगर हमने इंक्यूबेशन सेंटर चालू किया तो इंक्यूबेशन सेंटर के लिए उसको फैसिलिटीज, ये अगर हम मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है तो स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट इनकरेज कि नहीं भाई यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब में भाई ये काम कर रहा हूँ करके. The college and the collaboration hub between the faculty, alumni, local industries, bank, etc. कॉलेज में क्या होना चाहिए, कैसा हब होना चाहिए, जैसा इनोवेशन इंक्यूबेशन सेल बना हुआ है आपके कॉलेज में, तो फैकल्टीज का वहाँ पे इंटरेक्शन, एल्यूमिनी का भी एटलीस्ट ट्वाइस इन अ और थ्राइस इन अ मंथ उनका इंटरेक्शन, लोकल इंडस्ट्रीज की भी 3 मंथ्स में एक बार विजिट्स, बैंक्स वालों के साथ में भी, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए ना कि हम लोग उनको सपने दिखा रहे कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है. अरे पर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आपको कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आपको क्या क्या मॉर्गेज करना पड़ता है, या कुछ भी नहीं. एवरीथिंग, every thought process should be very much clear, and for that purpose we as a ED cell in charge, we have to take the initiative to organize these all the things. We have to work as a manager, we have to integrate alumni, we have to integrate faculties, we have to integrate alumni, we have to integrate local industries, and we have to bring them in one forum, and that practice we have to inculcate in the institutes. Then supportive ecosystem established within in stages within the college, because not necessary कि student want to do the innovation in mechanical engineering, if you want to do some computer science work, if you want to do some, तो his product एक इकोसिस्टम इस प्रकार से बनना चाहिए कि मल्टी डोमेन जो भी उसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए सभी ब्रांच का कोलैबोरेशन रह के हम लोग ये फैसिलिटी इसकी, ये फैसिलिटी इसकी, इसके बाद में वो प्रोडक्ट डेवलप होगा. सो दैट टाइप ऑफ सपोर्टिव इकोसिस्टम इज आल्सो नीड ऑफ एन आवर. एन इंटीरिम गोल, 10 एल्यूमिनी और स्टूडेंट पासिंग आउट लॉन्च ओन एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा टारगेट होना चाहिए कि वह हमारा एटलीस्ट 3 साल में 10 एल्यूमिनी ये जो स्टूडेंट्स पास आउट है उन्होंने खुद का सेटअप चालू करते आना चाहिए. ये दिस इज आवर विजन. इट इज नॉट अ विजन ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अ विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट. बिकॉज हम इंस्टीट्यूट में आज रहते कल नहीं रहते, मगर इंस्टीट्यूट का एक लॉन्ग टर्म का एक विजन होना चाहिए. और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो है establishment of innovation and ecosystem in higher education institute. So I am talking in terms of education institute.
because education institute is a part who integrate these all the activities together, and we are as a supporter, as a role player in this particular arena. तो ये एक इंस्टीट्यूशन का विजन होना चाहिए. फ्रॉम टारगेट टू प्रोसेस, अभी हमारी बात चल रही टारगेट टू प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले हम लोग टारगेट कि यार मेरे को ये साल में ये काम करने का है. तो कॉलेज मस्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंट दिस 3 इंटरलिंक प्रोसेस: इकोसिस्टम एनहांसमेंट प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप innovation competency development process, innovation promotion process. These all the 3 things are slightly interlinked. Ecosystem enhancement process, अभी ecosystem मतलब बाहर के भी जो इंक्यूबेशन सेंटर है उनका हमारे साथ में जुड़ना, इसके बाद में हमारे इंस्टीट्यूशन में भी जो भी मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है उनका भी साथ में मिलकर काम करना. इनोवेशन एंड जो पॉइंट नंबर भी मैं दूसरा बात कर रहा हूँ, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोसेस. तो बच्चों के अंदर में वो प्रोसेस को कैसा डेवलप करना, और जो कर रहे हैं बच्चे, मतलब जो एक इनिशियल स्टेज पे, उसको फिर आगे प्रमोट कैसे करना, क्योंकि उनको एक फोरम भी तो देना पड़ेगा ना. क्योंकि ये जो एज है बच्चों की, उसमें उनको लगता है कि यार मैं तो कुछ भी बना सकता, मगर वो प्रॉपर बना रहा कि नहीं, whether that product is scalable. So that all the parameters we as a teacher, we as a EDCL in charge, we have to give the thought process. We have to form the forum. We have to introduce that product in that particular forum. Likewise, that if that particular thought process, if we bring into the existence, then we can achieve from target to process. Here there are the 3 parameters: ecosystem enhancement process, entrepreneurial university college. Component number 1, inclusive of the grassroots community, engagement of university and community. इनोवेशन कर रहा हूं मैं, research and license of university owned technology. If that particular product, if we want to develop, then we have to take the help of this particular university owned technology, as well as some sort of funding avenues. And the component number 3 is university entrepreneurship innovation agenda reflected in its policy, mission, budget allocation. Because यूनिवर्सिटी के पास में भी इस प्रकार की स्कीम्स होना चाहिए, कॉलेजेस में भी इस प्रकार का कुछ स्कीम होना चाहिए कि हमारे एरिया, अगर हम लोग रूरल एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे हमारे बच्चों को प्रमोट करना है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कुछ अमाउंट मिलता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें भी देना है. एंड इफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम इंटीग्रेट टुगेदर, देन दैट प्रोडक्ट विल कम. University senior management, strong university leadership activity promoting clear and prominent entrepreneurship innovation agenda that is heard and understood by staff, student and the regional community. Priority is given to establishing market for the university innovative output, developing an approach that is responsive to the regional constraint and opportunities. ये जो भी है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है. An academic culture that acknowledges, support and rewards of entrepreneurship innovation within the cross-disciplinary context, helping to the nurture influential discipline-based role models, curriculars and co-curricular activities, and champions for institutional change. यहाँ पे यूनिवर्सिटी सीनियर मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉप ऑर्डर से लेके इस प्रकार का कल्चर
करिकुलम में किस प्रकार से डेवलप होना चाहिए उसके ऊपर में विचारधारा होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल हमारी बात चल रही। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एक इस प्रकार का एक कल्चर कल्टीवेट होना चाहिए, कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द ईयर्स, इंटर ब्रांचेस, इंटर डिसिप्लिनरी, ताकि स्टूडेंट के पास का आइडिया, अगर वो आइडिया मार्केट बाहर आता है तो वेदर दैट आइडिया इज वायबल और नॉट, तो इस प्रकार का थॉट प्रोसेस वहां पे होना चाहिए। हेल्पिंग एंड नर्चर द इन्फ्लुएंशियल डिसिप्लिन बेस्ड रोल मॉडल्स। करिकुलर में भी हम लोगों ने, अभी हम लोग ऑटोनॉमस है तो करिकुलर में भी हम लोगों ने उस प्रकार के सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन करना चाहिए, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्रेडिट बेस वगैरह रखना चाहिए, so that students can take that particular opportunity. Hallmarks of the entrepreneurship and innovation led university led innovation and entrepreneurship activity. जैसा अभी यूनिवर्सिटी ने सब सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो सब सेंटर का रोल क्या है कि बस सब सेंटर्स ने अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के बाद में उनके पास का जो भी आइडिया है या आसपास के, if you are working as a sub center in that particular region, so you have to find out the innovative concept in that particular rural area, you have to develop the product. यूनिवर्सिटी लेवल पे उसकी कंपटीशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ने सभी सब प्रकार का उसको सपोर्ट करना चाहिए एफिलिएटेड कॉलेजेस को। दैट स्टूडेंट लेड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, डेवलप नटबोल्ट कनेक्टेड स्टूडेंट लेड एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी, प्रोवाइड देम ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मेंटर, स्पेस एंड लैब। यहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर की हम लोग बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द इंक्यूबेशन सेंटर इज? इंक्यूबेशन सेंटर इज अ स्पेस वेयर स्टूडेंट कैन गेट अकोमोडेट फॉर 15 to 16 months if he has some sort of idea to bring that particular idea into the prototype and to till it comes into the commercialized stage. Till that level, if the space as well as the laboratory has been provided, so that particular phenomena has been called as the incubation centers. Then external and innovation entrepreneurship community, robust relationship built on the trust and the mutual benefits between the university and the regional national innovation entrepreneurship community with a platform for these individuals to play visible influential role in university lives. देखो अभी हम लोग प्रोडक्ट जो डेवलप कर रहे हैं कोई ऐसा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सट्रोवर्ट प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहे। अगर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट, जो भी सिस्टम्स, तो इट शुड बी, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, आप सिस्टम के साथ में जुड़े हुए, तो सिस्टम शुड हेल्प यू। If you want to develop the one model for that particular area, so that incubation center from where you are taking the help, that center should help you in all the respect in terms of university, if you are calling at the university, then the regional and the national entrepreneurship innovation community, क्योंकि उससे रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में आपका इंट्रोडक्शन करवाना, उनके यहाँ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, उनसे बात करके आपको आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म देने का। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच प्लेज विजिबल एंड इन्फ्लुएंस रोल इन द यूनिवर्सिटी लाइफ। बिकॉज आप लोग अभी यहाँ पे 4 साल के, मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो स्टूडेंट्स है उसको 4 साल में आपको एंटरप्रेन्योर बना के निकालने का है। इस प्रकार का कल्चर अपने को उसको वहाँ पे देने का है, ताकि फाइनल ईयर के बाद में वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली सोचे कि यार मुझे ये सब कर, मतलब ये आगे बढ़ना है, ये ही काम करना है। इकोसिस्टम एनहांसमेंट प्रोसेस। सर माय स्लाइड इज विजिबल? Yes, sir. Yes, it is visible, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर। इकोसिस्टम एनहांसमेंट प्रोसेस, दूसरी पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मिशन, buy-in from management, all the faculties for long terms, entrepreneurship development and innovation process, space allocation for activities. Now I am coming to the college. कॉलेज का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इनोवेशन सेल होना चाहिए, उसका एक मिशन होना चाहिए, मैनेजमेंट जुड़ी होना चाहिए उसमें, टॉप लेवल की फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, एल्यूमिना इसका, और उसके लिए प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द स्पेस, प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द लेबोरेटरीज, then formation of the goal setting by the college, entrepreneurship development cell and innovation council
फ्रॉम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एल्यूमिना, लोकल बैंकर्स, मतलब सबसे पहला जो टारगेट, क्योंकि हम लोग टारगेट से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, समझ गया ना। तो हमारा मिशन, हमने थॉट प्रोसेस रखा और उससे रिलेटेड ये सब चीजों का हमें चयन करना है। ये जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर हायरार्की में लगाने का है, टॉप मैनेजमेंट से लेके हमारे पास आउट एल्यूमिना तक। Then, being as an entrepreneurship development in charge or EDCL in charge, we have to align local alumni, bankers, क्योंकि बच्चों को सपने दिखाने के हैं और वो सपनों को अगर फुलफिल करने का है तो ये सबको हमको जोड़ना है, ये सबको हमको साथ में लाने का है। और ये सबका हमारा एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ अगर मीटिंग होता है तो ही हमारे बच्चों को हमारे ऊपर में ट्रस्ट आएगा और वो आगे बढ़ेंगे। Faculty trainings on entrepreneurship innovation facilitation across the faculties to enable across the broad involvement. Or very important factors, each and every faculty should give thought in that particular direction कि how entrepreneurship and innovation facility, क्योंकि ये जो नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी है इसमें अगर आप बीइंग एज अ फैकल्टी अगर आप लोग खुद का भी स्टार्टअप चालू कर सकते हो तो दैट हैज बीन परमिसिबल फ्रॉम AICTE अलोंग विद द स्टूडेंट्स। ओके ना, तो फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा इसमें, क्योंकि फैकल्टी अगर स्टार्टअप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट है हमारा उसका भी उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। टू अनेबल अक्रॉस द ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट, then a strong connection with the local entrepreneurs ecosystem and trust and performance। हम जो भी लोकल एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ में हमारा, क्योंकि हमें उनका हेल्प लेने का है। वी आर टीचर बट अपार्ट फ्रॉम द टीचर we are innovators and we are giving thought to our students. So the entrepreneurs, they are in the society, they are facing day to day regular problems to know the facts and figures. So we should have a strong connection with the local entrepreneurs. So we have to make the ecosystem with them with some sort of trust and performance. Then entrepreneurship and innovation competency development process, initiative, opportunities, persistence, information seeking, concerns for the high quality of the work, commitment to the work contract, efficiency orientation, problem solving, self confidence, assertiveness, persuasion, use of influential strategies. I already told you in the initial talk कि if he or she want to become an entrepreneur, his or her thought process should be entirely different. He should be a risk taker. He should have ability to do work. He should have ability to take out the work. He should be commit to the things. He should be stick up with the thought process. Whatever the commitment he has given to the people कि नहीं मेरे को आज ये काम करके देना है तो वो काम करके देना है। Consistency, whatever the innovation, if I can add in that particular work, so he should continuously upgrades. So these are the competencies I am talking over here. Initiatives, efficiency oriented problem solving, तो ये सब चीजें हमको हमारे स्टूडेंट्स में डेवलप करने की है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे। हम लोग बच्चे आए तो हम बच्चों को एकदम हाँ अरे नहीं ये वगैरह, नेवर डिस्करेज देम, बिकॉज whenever they used to come they have some sort of innovative thought process. So listen them carefully, if possible try to help them, if not possible from where we can supposed to help them, उनका efficiency हम लोग काम का कैसा बढ़ा सकते हैं, उनका confidence कैसा बढ़ा सकते हैं, उनके लिए क्या इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजी। क्योंकि देख यार अभी मतलब मैंने जैसे एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात की तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड नागपुर में रेवा एनवायरमेंटल है, अनेकॉन लैब्स है, वहाँ पे बच्चे हमारे वहाँ जाके क्या करके आ सकते हैं, मतलब वहाँ से इनको किस प्रकार, आई एम जस्ट कोरिलेटिंग द फैक्ट्स। इफ ही और सी चूजन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, अगर किसी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है ड्रोन का कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता है तो ड्रोन से रिलेटेड जो भी कंपनी, मतलब बीइंग एज अ हम लोग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम लोग सोसाइटी में एक जनरेशन को डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैकल्टी है, हमारा योगदान बहुत बड़ा है सोसाइटी में। हम लोग इंजीनियर्स को डेवलप कर रहे हैं। हमारा अगर स्टूडेंट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चालू करता है तो 10 या 15 लोगों को रोजगार देगा। अगर वो रोजगार देगा तो देश की जीडीपी में उसका योगदान रहेगा। मतलब देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका किसके साथ में लिंकेजेस है, तो उसके अंदर में उसके 4 साल जो आपके साथ में बिता रहा हो
वो 4 साल में उसका उसके अंदर का कल्चर कैसा इनकलकेट करना है, ये सब चीजें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने टीचर को रोल मॉडल मानता है। डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे, मगर आज हम लोग एमटेक पीएचडी एक्सपीरियंस पर्सन है, मगर हम लोग हमारी जिंदगी में कितने टीचर्स को याद करते हैं, प्राइमरी से लेके अभी तक जो भी 5-10 टीचर्स को हम लोग याद करते हैं, व्हाई वी आर रिमेम्बरिंग देम, बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे को बोला है, जो हमको पंच करके गए। उस प्रकार का मतलब यहाँ पे मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना, मतलब एक जस्ट मैं बात बताना है, क्योंकि वी आर हियर टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंसीज। तो इन दैट केस जितना हमें उनको हेल्प कर सकते हैं उतना हमको उनको हेल्प करने का है। Directly students are in our contact, then they are the contact with the higher order, that is head of the department, management. So being as a teacher, they are directly connected with us. उसके बाद में कॉलेज और उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी, मतलब उनका जो लिंकिंग है, तो हमें उनको कहां से कहां तक पहुंचाने का ही हमारे हाथ में है। एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसी स्टेप 1, बात मैंने अभी पहले बोल दिया तो वही बोल रहा हूँ कि स्टेप 1 अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग इंटरेक्शन। Steps 2 opportunity identification, business exposure. Step 3 product development, business plan preparation and financing. इसके ऊपर मैं एकदम विस्तार से चर्चा करता हूँ, कोई विषय नहीं। Entrepreneurship competency development process. मैं audible sir? Hello? Yes, audible. You are audible, sir. Yeah. Yes. Entrepreneurship competency development process year 1. यहाँ पे हम लोग ईयर 2 में आएंगे, क्योंकि ईयर 1 में फर्स्ट ईयर में लग गए थे। प्रोसेस टू कमेंस इन द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है ये 3 साल के लड़कों के लिए है, मगर यू कैन एज्यूम हम लोग सेकंड ईयर से बात करते हैं। प्रोसेस टू कमेंस इन द फर्स्ट ईयर फॉर द स्टूडेंट फॉर ऑल फैकल्टीज, एलुमनी एंड फाइनल ईयर टू लेट। फाइनल ईयर के लड़कों को हम बोल नहीं सकते कि तू एंटरप्रेन्योर बनकर, क्योंकि वो एक अपने अलग अलग धुन में रहता है। उसका अगर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अगर हम लोगों ने उसको चार्ज करते रहे, तो उसका थर्ड ईयर तक कुछ ना कुछ प्रोटोटाइप होके फाइनल ईयर में वो कमर्शियलाइज स्टेज पे आ सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस वर्कशॉप फॉर कवरिंग विलिंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑल फैकल्टीज एंड एलुमिना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल एवोल्यूशन कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन प्रोग्राम्स, ई क्लब मेंबरशिप ओनली ऑन द विलिंगनेस बेसिस। पहले साल हमारे यहाँ पे बच्चे आने के बाद में ये सब चीजें हमको उनके साथ में करना है। हमारे जो पास आउट स्टूडेंट है जिनके खुद के बिजनेसेस है, उनके साथ में उनका इंटरेक्शन करने का है। उनको हर वीक में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ में उनका सक्सेस, हर एंटरप्रेन्योर अपनी सक्सेस स्टोरी अगर वहां पे आके सुनाएगा, बच्चों को कुछ बताएगा, तो बच्चों के अंदर में कुछ ना कुछ जागृति होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सेल इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम, हमने भी पढ़ाने में हमारे करिकुलम में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्पिटिशन्स वगैरह ताकि कुछ लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन थॉट प्रोसेस है, उसको जागरूक हो जाए। ये बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर की। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन जो मैंने अभी पहले बता दिया। उसके बाद में कॉलेज में ई क्लब का मेंबरशिप, मतलब ई क्लब इतना जोर शोर से चालू होना चाहिए कॉलेज में, और उसमें बच्चों को व्हाट एग्जैक्टली द ई क्लब, उसका मेंबरशिप लो। उसके बाद में वो बच्चों को एक सेपरेट स्टेटस और सेपरेट अगर आइडेंटिटी दिए तो पूरे कॉलेज में एकदम माहौल बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का। देन एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोसेस ईयर 2 प्री फाइनल ईयर, क्योंकि पहले साल सिर्फ हम उनको सपने दिखा रहे हैं, ड्रीम्स दिखा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से उनके टॉक करवा रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास आउट हो चुके हैं उनका आके उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में उनको क्लब की मेंबरशिप दिए, उनको बाकायदा उनका फैसिलिटेशन किया, उसके बाद में इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने में भी उनको आगे बढ़ा दिया। सेकंड ईयर में जब वो बच्चे आ रहे तब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड वर्कशॉप, विजिट टू दी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि सेकंड ईयर में जैसे मतलब लड़कों को अपन पता कर सकते कि तेरा मतलब एक फर्स्ट ईयर में वो लड़का, मैं 3 साल के कोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर उसने फिर डेवलप कि नहीं मुझे करना है, तो सेकंड ईयर में फिर वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर में फोकस करता है। अब अगर किसी को कुछ लगता है कि मुझे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या फिर मुझे ई व्हीकल से रिलेटेड कुछ काम करने का है, तो ई व्हीकल से रिलेटेड जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उसके साथ में उसका अपना बीइंग एज ए फैकल्टी अपना उसको मार्गदर्शन करना, उसके साथ में उसको मिलाना। बिजनेस केसेस चैलेंजेस कॉम्पिटिशंस, बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट में बिजनेस केस चैलेंजेस कॉम्पिटिशन लेने की हर सेमेस्टर में मिनिमम 2 बार। रन योर कंपनी प्रोग्राम्स, बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशंस एट यूनिवर्सिटी लेवल्स, क्योंकि आपने आपके बच्चों को इस प्रकार से मतलब यहाँ पे बच्चा अभी सिर्फ सेकंड ईयर में है, बच्चे के सिर्फ दिमाग में है, वो आइडिया को उसको एग्जीक्यूट करने का है, ठीक है।
तो ये आइडिया को अपने को उसको प्रोडक्ट तक लेके जाने का है। आइडिया छोटी भी हो सकती है, आइडिया बड़ी भी हो सकती है। हम लोग सब स्पेक्ट यूज कर, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिस एग्जांपल आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक विद द स्टूडेंट्स कि द स्पेक्ट व्हिच वी आर यूजिंग, तो स्पेक्ट्स को वाइपर नहीं है हमारे, क्योंकि हम लोग बारिश में जाते हैं तो हमारा जो स्पेक्ट है उसके ऊपर पानी वानी आ जाता है। अगर छोटा सा कुछ वाइपर वगैरह डेवलप किया तो ये बोलने के लिए इतना आसान नहीं है उसको, मतलब मैं ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ में टॉक कर रहा हूँ। इवन दो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत गट्स लगते हैं, और गट्स सभी में है, आप में भी है, मेरे में भी। गट्स का प्रॉपर इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। तो बच्चों और स्टूडेंट्स को हमको डेवलप करना है, और ये 3 साल की जर्नी में हमको उनको डेवलप करने का है। तो देखिए, पहले साल हमने उनको सपने दिखाए, दूसरे साल हमने उनको उनके दिमाग में जो आइडिया थी वो आइडिया से रिलेटेड हमने कंपटीशन लेके वो आइडिया स्केलेबल है कि नहीं। आर यू गेटिंग मी? वेदर दैट आइडिया, वॉट एवर द आइडिया the student has been put in front of you, you have put that idea in the university forum, you have put that idea in idea pitching competition, and the panel has decided कि नहीं, this particular product can be a innovative concept and we can start there and start up. Then in final year प्रोटोटाइप एंड टेस्ट मेकिंग, फिर वो पर्टिकुलर बैच को आगे बढ़ाने का स्टूडेंट को प्रोटोटाइप टेस्ट मार्केटिंग। मैं ऑडिबल सर? यस सर, ऑडिबल सर, ऑडिबल। या सर, नाउ वी आर कमिंग टू दी, मतलब देखो वही स्टूडेंट पहले साल जब आया, मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में आने के बाद में उसको हमने सपने दिखाया, उसको हमने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ में टॉक करवाए, हमारे जो पास आउट स्टूडेंट है उनको साथ में लाके उसके साथ में चर्चा किया। उसके बाद में थर्ड ईयर में उनके लिए हमने आइडिया पिचिंग कंपटीशन लिया। और सेकंड ईयर में एक बात मैं बताना भूल गया, हमने ई क्लब वगैरह चालू किया, बच्चों को प्रमोशन किया, बच्चों को उसका किसी को सेक्रेटरी बनाया, किसी को चेयरमैन बताया, ताकि उनका हौसला वहां पे बढ़ रहा है और उनको पता चल रहा है कि ये काम करने के लिए कॉलेज अपने को फंड दे रहा है, ये काम करने के लिए लेबोरेटरी मिल रही, ये काम करने के लिए अपने को यहाँ पे फैसिलिटी है, ये सर अपने को इस विषय पे कोई अपने कोडिंग की हेल्प कर रहा, कोई किसकी चीज की। तो इस प्रकार का माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया है। देखो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हम लोगों ने उनके दिमाग से उनकी जो आइडिया है उसको फाइंड आउट किया और वो आइडिया से रिलेटेड वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनका मिलान जो कि मेल मीटअप किया, ताकि उनका जो हौसला है उसको आगे बढ़ा रहे। फाइनल ईयर में जब वो बच्चा आ रहा तब उसका हमने उसको बोला कि चल यार तू अपना प्रोटोटाइप बना, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्ट। हमारे यहाँ पे MBA है, हमने उसको फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाने का, क्योंकि टू डेवलप द प्रोडक्ट इज इजी बट टू सेल द प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट। So how to develop, prepare the business plan, because we required investors for that particular product. तो इन्वेस्टर्स इंप्रेस कैसा हो जाए, उस प्रकार से वो बिजनेस प्लान कैसा बनाना चाहिए, इसकी मदद के लिए एल्यूमिनी, अदर एंटरप्रेन्योर्स, हमारे MBA के फैकल्टीज, दिस पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल ट्रेन द स्टूडेंट्स। देन फाइनेंसिंग वर्कशॉप टाइप्स एंड बिजनेस लॉन्च। ऐसा करते 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 स्टूडेंट्स को हमने फाइनल ईयर तक, एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर ही शुड बी इन अ पोजीशन कि नहीं सर मैं भी चालू कर सकता। देन इस प्रकार से, मतलब मेरे को ये बोलना है कि वो एक कल्चर हमारे पास में होना चाहिए। देन इनोवेशन क्लाइमेट, स्टूडेंट एंड फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन पॉलिसी, स्टूडेंट गेट क्रेडिट। देखो आपके यहाँ पे 500 बच्चे, 600 बच्चे, 1000 बच्चे, इतने बच्चों में से ये पर्टिकुलर एरिया में बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ताकत लगती है।
तो एक इनोवेशन क्लाइमेट की वहां पे होना जरूरी है। स्टूडेंट फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एक इंस्टीट्यूट के लेवल पे पॉलिसी होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग बैक, माय टॉपिक इज establishment of innovation and ecosystem in higher education institute. Related to that I am talking. पहली मेथोडोलॉजी मैंने बताया कि स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, दूसरा इसको प्रमोट कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये 2 या 4 बच्चों को लेके नहीं है, हमारे यहाँ पे सालों साल चलते आना चाहिए, एक क्लाइमेट हमारे यहाँ पे बनना चाहिए। तो स्टूडेंट फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन पॉलिसी मतलब ये वो पॉलिसी इंस्टीट्यूट की फ्रेम होना चाहिए। स्टूडेंट गेट क्रेडिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एक्टिविटी। हमारे करिकुलम में हम लोग ऑटोनॉमी में आसानी से कर सकते हैं। अगर वो इको क्लब्स के साथ में जुड़ रहा है तो उसको कुछ क्रेडिट दे रहे हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए उसको अपने को सपने नहीं दिखाने का, उसको आगे भी लेके जाने का। स्टूडेंट गेट क्रेडिट of that particular activity, intellectual property creation and commercialization given priority in faculty performance and appraisals। क्योंकि कोई शिक्षक वो विद्यार्थी के साथ में जुड़ा रहता है तो फैकल्टीज को भी अगर प्रमोट करना है तो फैकल्टीज के परफॉर्मेंस अप्राइजल में अगर आपका प्रोडक्ट कमर्शियलाइज होता है तो उससे रिलेटेड अप्राइजल में भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन एंड अनलेस एंड अंटिल वी कैन नॉट कल्टिवेट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन टू द इंस्टीट्यूट सच टाइप ऑफ कल्चर कैन नॉट बी डेवलप्ड। Faculty permitted to co-launch technology startup with the students। Faculty and student entrepreneurship separately permitted। स्टूडेंट के साथ में भी फैकल्टी स्टार्टअप चालू कर सकता है, उसके बाद में उसको आगे बढ़ा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है आपका, मतलब आपका नहीं, मैं यहाँ पे आपका वापस ले रहा हूँ शब्द। इंस्टीट्यूट हैविंग नंबर ऑफ बसेस, यू कैन स्टार्ट एनी सर्विस स्टेशन, क्योंकि 200-300 बाइक्स आती है, कॉलेज की बसेस है। वॉशिंग ऑयल चेंजिंग का भी अगर स्टार्टअप बच्चों ने चालू किया, बच्चों का स्टार्टअप सेकंड ईयर लेवल से फाइनल ईयर तक रहता है, उसमें टीचर्स लोग सपोर्ट करते हैं। 3 साल के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में बच्चा स्टार्टअप छोड़ के अपना खुद का बाहर निकालता है, चालू करता है, बट दैट स्टार्टअप प्रोसेस इज गेट कंटिन्यूशन। अगर हम लोग कॉलेज के कैंटीन की बात करते हैं तो कैंटीन भी अगर बच्चे फैकल्टी मिला के चलाए तो वो भी मतलब दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टार्टअप। मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, मतलब ये कल्चर अगर इंस्टीट्यूट में डेवलप हो गया तो उस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म का मैसेज उसमें जाता है कि नहीं यार यहाँ पे, और हम मेरा जो अपना जो सपना है कि हमें हमारे बच्चे इतने यहाँ पे प्लेस हुए, इतने यहाँ पे प्लेस हुए, ऑल इंडिया के कॉलेजेस वही शो कर रहे हैं, मगर हमें कुछ तो भी हटके करना है। अगर हटके अगर करेंगे तो ही हम लोग हमारे कंट्री के जीडीपी की ग्रोथ करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हमारे इतने स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट हमें वो वाला जो दूसरा पोस्टर है जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, 2 अलग अलग पोस्टर दिखाए थे, तो हमको वो दूसरे पोस्टर के ऊपर में काम करना है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी, आईपी वैल्यू शेयरिंग पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री फैकल्टी स्टूडेंट, एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई पेटेंट इंस्टीट्यूट के नाम से अगर जा रहा है तो बच्चे को उसका कितना मिलेगा, इंस्टीट्यूशन को उसका क्या बेनिफिट रहेगा। द थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी मच क्लियर, बिकॉज व्हेनेवर वी, अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि भाई ये काम हमको अगर आगे करना है तो उसमें हमारी बहुत ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, ताकि तो ही हम लोग विन विन सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। या फिर आधे में किया और आधे में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट के पॉलिसी के साथ में इंस्टीट्यूट के फाउंडर चेयरमैन से लेके फैकल्टी एल्यूमिना तक उसका एसोसिएशन, उसका मीटिंग, उसका मेल मीटअप, उसमें मालूम है बच्चों को कि यार कॉलेज अपने को इतना पैसा दे रहा है इनिशियल, मतलब द थॉट प्रोसेस एज वेल एज द स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी मच फिक्स। Innovation infrastructure, outstanding research faculty with Intel experience, strong research lab and programs, industry partnership, technology incubators, collaborators with external technology innovators, seeds and angel funding type, and intellectual property advisors. These all are the asset of our incubation centers. These all are the asset of our entrepreneurship development cell. Outstanding research of the faculties, because our faculties are doing research, they are publishing their paper in Scopus, SCI, वगैरह, but whatever the outstanding research, if that particular research should come into the commercialize, so the institute can do the miracle. And the countries which we have seen in my earlier slides, only on the basis of the patents as well as the innovations, they are much ahead than us, because they have so much MSE, medium small enterprises, 80 to 90% funding and employment they are generating from the MSc, and whether in our country we are much lagging behind. And I already told you कि
1000 लोगों के पीछे हमारे कंट्री में सिर्फ एक कंपनी है, और हमारे कंट्री में ये आज का जो साल चल रहा है, ये साल के अंदर में मतलब ये आउट ऑफ 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 135 टू 140 जो करोड़ पॉपुलेशन, उसमें से 65 करोड़ पॉपुलेशन यंग एज की पॉपुलेशन है। ये यंग एज की पॉपुलेशन जॉब के पीछे घूम रही है, क्योंकि 1000 लोगों के पीछे सिर्फ एक इंडस्ट्री, बताइए कितने लोगों को जॉब मिलेगा। तो हमें ये कल्चर इनकलकेट करना है हमारे बच्चों में, ताकि एक स्टूडेंट अगर हमारा एंटरप्रेन्योर बनता है तो 25 लोगों को जॉब दे पाएगा। और ये कोई वनडे का प्लानिंग नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड वी ऑल हैव टू इंटीग्रेट इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज के साथ में हमारा ऑलरेडी, हम इंस्टीट्यूट में इतना टाइप करते हैं, मगर हमें वो टाइप को हमारे इनोवेशन एक्टिविटी के तौर पे करना चाहिए। अगर उनका कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग अगर सोल्यूशन दे रहे, दैट सोल्यूशन कैन बी स्केलेबल। देन द टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, कोई टेक्नोलॉजी अगर हमने डेवलप किया तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग किसी को कंसल्टेंसी दे सकते। कोलैबोरेशन विद द एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स। देन द सीड एंड एंजल फंडिंग स्टार्टअप्स, सीड मनी, जैसा हमने हमारे बच्चों ने कुछ छोटा मोटा काम मतलब स्टार्टअप चालू किया तो उनको इनिशियली सीड मनी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना जो अमाउंट है वो अमाउंट प्रोविडेंट फंड का पैसा वगैरह जो है वो एफडीज वगैरह में लगाते हैं, मगर कुछ ना कुछ अगर अमाउंट, क्योंकि हमें पता है ये जो बच्चा काम कर रहा है ये स्टार्टअप सेलेबल है, इसमें अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया दैट हैज बीन कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर्स। तो उस प्रकार के जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर्स का भी एक हमारा ग्रुप होना चाहिए, ताकि वो भी, हमने जो आइडिया पिचिंग कंपटीशन रखते हैं उसमें हमेशा उनको बुलाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट में दम है, वो अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो 2 साल के बाद में वो अपना पैसा निकाल लेते हैं प्रॉफिट के साथ में। बट सच टाइप ऑफ एंजल इन्वेस्टर आर वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट, उनके साथ में हमारा एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये हमारा इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एडवाइजर हमारे इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इनोवेशन फंडिंग की बात किया, तो देखिए अभी आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स कोई भी अलग अलग इसमें काम कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टअप कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड स्टार्टअप कर सकते हैं, वुमन एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्टअप, पहले जनरेशन का एंटरप्रेन्योर्स। तो हर एक के लिए अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो सेक्शन आपके कॉलेज में सेक्शन 8C कंपनी रजिस्टर होना चाहिए। इफ योर कॉलेज इज रजिस्टर्ड सेक्शन 8C कंपनी, so then you can apply for this particular scheme. There are so many schemes and up to 1 crore funding is available, but the scheme should be proper, because that scheme should be violated by 2 to 3 authorities. Okay, and the condition is that your college is registered at section 8C company. तो स्टूडेंट का अगर बायोटेक्नोलॉजी पे काम है तो, और आपका इंक्यूबेशन से आपकी जो कॉलेज है अगर वो सेक्शन 8C कंपनी रजिस्टर करता है, तो you can apply for that particular scheme and you are able to get the funding up to 1 crore rupees. तो वो जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने तक, उसको एक अच्छा मैच्योर्ड स्टेज तक लाने तक आप उसको फंडिंग कर सकते हैं। तो लाइकवाइज दैट देयर आर वेरियस स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग द इनोवेशन ऑफ द रूरल इंडस्ट्रीज, देन द स्टार्टअप्स, इंक्यूबेट कंपनीज, वुमन एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, सपोर्ट टू इनोवेशन स्टार्टअप्स। एकदम कुछ नया कंसेप्ट है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उससे रिलेटेड भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। दैट हैज बीन अंडरकम द निधि TBI. So these are the various schemes. So these all are the available. Then innovation में इसके ऊपर में हम लोग बात कर चुके हैं, मगर स्टेज 1 मैनेजमेंट बाय इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन काउंसिल फॉर विलिंग फैकल्टी ट्रेड। अभी हम लोग आ रहे फिर से इंस्टीट्यूट में बैक में, मतलब मैं फिर से इसका एक समरी टाइप बात कर रहे हैं। स्टेज 1 मैनेजमेंट बाय इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन काउंसिल फॉर्म, वो हम कर चुके। विलिंग फैकल्टी ट्रेड, क्योंकि हम लोगों को ग्रुप करना है, हर डिपार्टमेंट से फैकल्टीज को फॉर्म करने का है। जो भी फैकल्टीज रिसर्च कर रहे हैं उनको भी हमको मोटिवेट करना है कि योर रिसर्च शुड बी इनोवेटिव बेस्ड एंड इट कैन कम विद सम सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप। और स्टूडेंट्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं, इसलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्टेज 2 एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस लॉन्च इंडस्ट्री बैंक रोपिन हमने इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया। उसके बाद में हमारा इंडस्ट्रीज के साथ में टाइल्स बैंक के साथ में भी चर्चा, मतलब ये सबको हमको लिंक करना है। और ये एकदम ही आप बोलेंगे कि सर ये बैंक वगैरह, मगर कैसा है कि बैंक का भी हमारे साथ में एसोसिएशन है, ये सब चीजें। स्टूडेंट्स को हमें उनका ट्रस्ट हमको गेन करना है, तो
these are the avenues available with us. Unless and until we cannot show them the dreams, so they cannot trust on us. Then the stage 3 business launch incubators established. Already most of the institute has established innovation incubation centers. If you have, then no problem, but if you do not have, you can take the help of university, you can take the help of any sub-center. Then the technology development, prototype and टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स. तो यहाँ पे जो भी आपके जो बच्चों का थर्ड ईयर में वगैरह या फाइनल ईयर में प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाओ, वो प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप वो लॉन्च करने का है. तो इस प्रकार से उसको ये मालूम है कि ये अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास में बैंक भी है, कॉलेज मेरे को बैंक से भी सपोर्ट करके दे रहा, कॉलेज भी कुछ ना कुछ सीड अमाउंट देने वाला है, कॉलेज की फैकल्टीज भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है. तो इस प्रकार से ये स्टेज में ये प्रोसेस एक्सेलेंट होती है. एंड द आउटकम इज दिस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप डिजायर्ड आउटकम. तो द स्टूडेंट हु विल बी कम आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट हु हैज बीन कॉल्ड एज एनिमेलिया, he can be the desired outcome of that particular thought process. ये 4 साल का जर्नी में ये जो चेहरा दिख रहा है ये है. पहले साल उसको कॉलेज में एंट्री, सेकंड ईयर में उसको हमने सपने दिखाए, एंटरप्रेनर्स के साथ में उसका मेल मीटअप किया, उसको हर वीक में अच्छे स्टार्टअप की स्टोरी सुनाया, उसको दिखाया प्लान्स कैसे लिखा जाता है. उसके बाद में थर्ड ईयर में उसके दिमाग से आइडिया पिचिंग कंपटीशन में उसको इंट्रोड्यूस करवाया. उसका प्रोडक्ट जो था 4 पैनल्स वालों ने बोला कि नहीं दिस प्रोडक्ट इज सेलेबल, तो उसके हिसाब से फिर वो बैच को प्रमोट किया. वो बैच को प्रमोट करने के बाद में उनको प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाने तक हेल्प किया. प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाने के बाद में उनका बिजनेस प्लान वगैरह लिख के उनको मार्केट में लाने तक का हेल्प कॉलेज कर रहे हैं. एंड दिस इज द आउटकम. ये जो चीजें मैंने आपसे बात किया, इसका मापदंड क्या है? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं मगर हमारा कुछ ना कुछ मतलब मेजरेबल आउटकम होना चाहिए ना. तो नंबर ऑफ, क्योंकि देखिए हम आपकी या मेरी बात नहीं कर रहे, हम हमारे साथ में कॉलेज जुड़ा हुआ है, हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, हमारे साथ में फैकल्टी जुड़ी है, हमारे साथ में प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में डायरेक्टर जुड़े हुए हैं. ऑल द पीपल्स आर इंटीग्रेटेड. एक ही बना के नहीं रहते. Because if the people or if the management is trusting on that particular sale, then that sale has to show the position to start the startup. How many banks are involved with them? How many students have registered for the patent? Likewise that. So these are the things. Creation of the sustainable companies, another part. कंपनी जो भी 3-4 साल अभी मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 की बात कर रहा, क्योंकि हम हर साल कर रही है और टारगेट है हमारा कि भाई एटलीस्ट हमारा 2 या मतलब वहां पे तो प्रेजेंटेशन में तो 10 कंपनीज बोला है पास आउट और स्टूडेंट के लिए, मगर एक आपने 10 न पकड़ते हुए कुछ 3-4 भी अगर शुरू में पकड़ लिया तो वह कंपनी का सर्वाइवल रेट, क्योंकि बच्चे बड़े एंथो के साथ में आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद में बैक फुट पे आ जाते हैं. तो कंपनी का सर्वाइवल रेट, नंबर ऑफ कंपनीज विथ मोर देन 20 एम्प्लॉइज, टोटल मनी रेज फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, बाहर से कितना पैसा सीड मनी इन्वेस्टर ने उसमें डाला हुआ है, उससे भी स्टार्टअप का सक्सेस रेट पता चलता है ना यार. इतने बाहर के लोग, अगर भी बायजू के लिए इतने लोग, ये जो बायजू यू ऑल आर अवेयर, बायजू बोले या फिर ये जो ओला वगैरह, इतना बाहर से लोग उसमें पैसा, क्योंकि दिख रहा है कि उसमें से आउटपुट है. हम लोग अगर हमारा पैसा डाल रहे तो वो निकलने वाला है. तो टोटल मनी रेज फ्रॉम द एक्सटर्नल investor, total sales in the marketplace resulting from intellectual property, total financial value of the companies created. फाइनेंशियल वैल्यूज क्या है हमारी कंपनीज की? कुछ ना कुछ तो हमारा एक रेपुटेशन होना चाहिए कि नहीं, कि आज जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन का एक रेपुटेशन है, दैट इज द रेपुटेशन व्हिच वी हैव बीन अर्न, उसके वजह से हमारा एक फाइनेंशियल वैल्यू है. तो दिस इज द मेजरेबल आउटकम ऑफ दिस. इन इम्पैक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, परसेंटेज ऑफ द एलुमनी रिमेनिंग इन और returning to ecosystems, percentage of the graduate working in the technology related business, percentage of the alumni aged 30 to 40
engage in starting new generation companies, engage in innovation or self-reported, well created by the companies, funded by university graduates. These all are the different parameters. This is the general report. ये एकदम मतलब it takes some time, but at least स्टेज 1 स्टेज 2 तक तो भी हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर पाते हैं अगर हम लोगों ने एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाए और सेकंड ईयर लेवल से अगर हम लोगों ने बच्चों की तरफ ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ आगे बढ़ाए तो इसके रिजल्ट आपको एक 3-4 साल में दिखना चालू होते हैं. Broader development of the ecosystem beyond, whether the people, companies, entrepreneurs, and investor, professional service providers are moving into the region for the opportunities. आपके तरफ लोगों का आना, growth rate of all the startup and high technology companies in the region, the extent to which university PhD students are employed, the total employment generated by the ecosystems, whether the university attract ambitious students and faculty. These all are the measuring outcomes of the entrepreneurship ecosystems. And if we will develop this particular system simultaneously as we grow, as we reap, so these are the outcomes. And the last, innovation entrepreneurship plays very important role. I just want to conclude now कि यहाँ पे मैंने आपको पूरा जर्नी बताया. सेकंड ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर में लेने के बाद में बच्चे ने उसका फाइनल ईयर तक की जर्नी में उसको हम लोगों ने किस प्रकार से नर्चरिंग करना चाहिए, किस प्रकार से उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसमें मैनेजमेंट का रोल क्या होना चाहिए, उसमें यूनिवर्सिटी का रोल क्या होना चाहिए, उसमें शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, उसमें उसके जो कलीग्स है उसका रोल क्या होना चाहिए, उसमें उसके एल्यूमिनिस का रोल क्या होना चाहिए, उसके बाद में जो सिस्टम हमारे इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई उसके मेजरिंग उसका मापदंड क्या है वो भी हमारी यहाँ पे चर्चा होगी. The entire discussion is now I'm concluding in terms of summary. The innovation entrepreneurship plays very important role for the enhancement of the country economy as per the Global Innovation Index Ranking Survey 2021. And now you people are all are agree. If somebody will start SME, no doubt he will play very important role for enhancing the GDP of our country. Institutes, university matters the role of innovation and quality because technocrats are generated from the institutes. So university as well as institute, these things plays very important role. Whatever the facility हम लोग किस प्रकार से सुविधा दे रहे ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसा बाहर आ रहा है. टास्क ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड अफिलिएटेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का रोल क्या है और अफिलिएटेड कॉलेज का रोल क्या है, इकोसिस्टम एनहांसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोसेस, बच्चों के अंदर में वो जागरूकता करना और वो जो जागरूकता करने के बाद में उनको प्रमोट करना और हमारे यहाँ पे एक ऐसा वातावरण की निर्मित करना. ये तीनों भी चीजों को अगर हम लोग इन तीनों भी चीजों का अगर मेल मिलाप यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस करते हैं साथ में मिलके तो नो डाउट योर प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली हेल्प टू एनहांस द जीडीपी ऑफ द कंट्री एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट ही और हर will able to provide the job to the society because we want to make our student as a job provider, not as a job seeker, because we want to show this particular slide as a marketing point of view. Entrepreneurs launch, life science में हमने इतने किया, मैन्युफैक्चरिंग में इतने किया, and it is not a single talk journey. It will take time, but it is a step-by-step process, and we should be very much stick up with our thought process, our attitude, our approach, our visionary, our culture, these all the things. So it is all about the innovation and ecosystem establishment in higher education institutes. So it is all from my side. I'm very much thankful. Thank you so much. It's a nice and a very informative session from your side, sir. Bhushan sir, Dr. Bhushan sir. Thank you. Yes, participants, any question or any doubt related to this topic, you can ask with Dr. Bhushan Mahajan sir. Yes, participants. Is any questions from participant side? Dear participant, dear most respected and learned faculties, it is my sincere advice to you all, whatever the projects you are giving to your students, you please choose the project in such a way so that it can be a patentable, not stop up to the patent stage, it can be come into the commercialized stage, because we are now our role
to give something to the society. We are generating the generations. We are generating technocrats. So whatever the technocrats which we are generating, so in that particular thought process, whatever the research you are doing in terms of your SCI, Scopus projects and all that, so you develop that particular thought process in your mind, only not to give this project to the students. So this is what I want to tell you, because हमको सबको कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा हाथभार लगाने का है हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोग बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं. बहुत फैसिलिटीज है हमारे पास में, सिर्फ हमारी सोच में चेंजेस आना बहुत जरूरी है. और आई हैव रिटन वन लेटर टू यूजीसी आल्सो कि द फैकल्टी who will do one or two startups successfully, and if that startup will run for 1 or 2 years successfully, एक जो पीएचडी कैंडिडेट को अवार्ड करने का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ये फैकल्टी को मिलना चाहिए. इस प्रकार का मैंने पत्र सहस्त्रबुद्धे साहब को लिखा हुआ है, क्योंकि ये काम करने के लिए बहुत ताकत लगती है सर. बहुत बच्चों का हौसला बढ़ा के रखना पड़ता है 4 साल. और ये मैं आपको बोलूंगा कि ये डिफिकल्ट भी है, मगर ये सब हमारे हाथ में है. क्योंकि हम लोगों, मैंने आपको एक बात बोला कि हमारे एजुकेशन करियर के जर्नी में, हमारे प्राइमरी एजुकेशन से लेके हमारे पीएचडी के एजुकेशन तक, हम लोग कितने टीचर को याद करते हैं. जो टीचर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कुछ तो भी ऐसा रोल प्ले करता है, उसको हम लोग याद रखते हैं. नॉट मोर देन 5 to 10 पीपल्स वी रिमेंबर्स. तो हमें उस प्रकार से बनना है. यहाँ पे मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना है, मगर मैं आपको बता रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं. बहुत सामर्थ्य है आप लोगों में. आप शिक्षक हो, आपके हाथ में बहुत, क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छा मैन पावर है, और स्टूडेंट्स आर रियली वेरी जीनियस. Whenever they come to you, you please listen them very carefully. You please try to understand their facts. If possible, try to help them. और उनका मतलब उनको 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 उनका रोड मैप दिखाइए, उनको उनके जीवन का पर्पस आप बताइए. अगर आपने उतना भी अगर कर दिया तो इट इज वन ऑफ द फाइन थिंग इन योर लाइफ. बहुत सेटिस्फेक्शन लगेगा. यही मुझे मतलब ये प्रेजेंटेशन का मेरे को एक आउटकम आपको बताना था. So it is all from my side, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, actually, we are also expected from your side, sir. We all are the learners, and we have started our career in this education system also, and we know that the future is in innovation, IPR, and entrepreneurship, sir. Yes, So sir. really, your words will inspire us. All the faculties we are started their career in the education field, sir. So yes, any questions from audience sides? Okay. I would like to speak about. I don't have any question because I know that Bhushan Mahajan sir, Dr. Bhushan Mahajan sir, is a very resourceful person and very kind-hearted. He helps people, and he is mentoring us since day one. And in future also, we need your help, sir. Since you are now part of RTMNU, Yes, you are training and placement officer at RTMNU. So we are expecting that soon we will get associated with RTMNU on the front of incubation center. Yes, yes. And then also we need your help. And your session was very inspiring, very informative, and I hope everyone will take advantage of it. And since we are now new in this field, but everyone is very resourceful, everyone has a faith on their students and their department. So everyone will utilize the words you have told, thoughts you have given, and they will give best as they can. So this is my commitment from my institution to you, and very soon you will see us flourishing. Yeah, Thank you so much, sir. Thank you for giving us a valuable time. Thank you, madam. Definitely. And definitely, I am very sorry for joining later. You please try to. No issue, sir. It's a technical issue also. So once again, I want to tell you, I had worked for the technical institution from last 27 years. Now, before starting this particular session, I was addressing MA history students, and more than 25 students are there. I told them their career journey from where they have to start. Now I have diverted my field, and I am explaining them you can get job over here, you can do such type of business and all that. There also I explain them if I will give you the job of call center, but don't take this job of the call center in a different way, because what exactly the call center people are doing, you can start your own call center. How that entire process I explain them. So likewise that it is my appeal and request to you कि you please, because आपके पास में बहुत ताकत है सर, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं.
तो आप उनका Definitely, यूटिलाइज करके आप उनको आगे बढ़ाइए सर। बस Definitely, अगर sir. आपने एक And- दो स्टूडेंट्स को अगर एंटरप्रेन्योर बना दिया ना तो जीवन सफल सर। जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है सर, एक मार्गदर्शन अगर मिल गया ना बच्चों को, एक गाइडेंस मिल गया तो वो उस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं सर। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इट हैज बीन such a honor to be a part of this wonderful session. On behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Bhushan Mahajan sir, who is a Training and Placement Officer at RTMNU Nagpur. Thank you, sir. And sincere thanks to all the heads of various departments. A wide round of applause and the thanks to all the participants who made the session a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us and today and helping us to make this event. Thank you one and all. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, sir. Definitely, sir. Yes. The Shall I next- take your leave now? Definitely, sir. Thank you, madam, sir. And we are rarely contact with you without for this innovations and training and placement No problem, sir. activities. sir. Anytime I will come to you at your place, sir. I will hear from Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Huh? Thank you. Yes. Dear participants, the next session will start on 2 p.m. that conducted by Dr. Khushi Sindhi ma'am, which is R&D coordinator and ISSL president from SBJITMR Nagpur. So we will meet at 2 p.m. for the session, and after that the valedictory session of this FDP will be conducted. Thank you very much.